نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ليس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء او كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اور احادیث کے بے شمار مجموعے میں سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں کی 5 مہلک اور خطرناک روحانی بیماریوں کا تذکرہ فرمایا ہے. وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی تمہارے مردوں کے اندر اور تمہارے عورتوں کے درمیان ایک چیز ہے، وہ دوسروں کا مذاق اڑانا. نہ ہی مردوں کو کسی مرد کا مذاق اڑانے کی اجازت ہے، نہ ہی عورت کو کسی دوسری عورت کا مذاق اڑانے کی شریعت کی روح اور قرآن کی روح سے اجازت ہے. اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ ایک دوسرے کو برے القابات سے بھی نہ پکارو. بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، یہ جو فسق کا نام ہے یہ بہت ہی بری شے ہے ایمان لانے کے بعد. اور جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں بھی یہی گناہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شمار کروائے کہ ایک مومن نہ تانا دینے والا ہو سکتا ہے، نہ لعنت دینے والا ہو سکتا ہے، اور نہ ہی بدگوئی کرنے والا ہو سکتا ہے، نہ ہی گالی دینے والا ہو سکتا ہے. آج بدقسمتی سے یہ ہمارے معاشرے کی وہ مہلک بیماریاں ہیں کہ جن سے ہم اپنی جان چھڑانے سے قاصر آ چکے ہیں. ہم جس مجلس میں بیٹھ جائیں تو وہاں یقیناً کسی تیسرے کا تذکرہ اور اس کو موضوع سخن بنا کر اس کے ساتھ طوفان بدتمیزی برپا کیا جاتا ہے. اگر وہ شخص خود آ جائے تو وہ بیچارہ پانی ہو کر وہاں اس مجلس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ اس مجلس میں نہیں بیٹھ سکتا. اور دیگر لوگ جو ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں. تمسخر اور مذاق بنانا اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب بندہ اپنے آپ کو اونچا سمجھے اور اپنے آپ کو کسی مقام پر سمجھے اور سامنے والے کو نیچا سمجھے، سامنے والے کو یہ سمجھے کہ یہ ہیچ ہے اور بیکار ہے، اس کو کچھ نہیں آتا، لہٰذا وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کے ساتھ تمسخر بازی کرتے ہیں. لیکن یہ کرنا کسی صورت کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے. ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سفر کر رہے تھے. رات کا وقت ہوا تو رات کے وقت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ایک جگہ ٹھہر گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. پھر ایک شخص ان میں سے سوئے ہوئے تھے تو ان کی رسی اٹھا لی گئی اور سارے ان کو تنگ کرنے کی نیت سے، پریشان کرنے کی نیت سے جب وہ رسی کو اٹھایا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منع فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کو تنگ کرنے کی نیت سے اس طریقے کا معاملہ کرے. آج میں اور آج جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں صراحتاً یہی کام ہو رہے ہیں. ہر ایک اسی کام میں لگا ہوا ہے. کسی کو اگر کوئی کام نہیں ہے تو دوسرے کے ساتھ مذاق اڑانے میں وہ دوسروں کو شریک کر کسی ایک تیسرے کی توہین کرنے پر تلے ہوتے ہیں. لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العزت نے اس کو بھی بنایا ہے، اللہ نے مجھے بھی بنایا ہے. کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس کے اور میرے درمیان تفاضل اور اونچ نیچ کا باعث بنے. کسی ایک کے درمیان بھی کوئی فضیلت نہیں ہے، سب کے سب برابر ہے. اللہ نے سب کو وہی شے دی ہے جو کسی سامنے والے کو دی ہے، یا جو شخص مذاق اڑا رہا ہے اس کے پاس بھی وہی چیزیں ہیں، جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اس کے پاس بھی وہی چیزیں. ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرہ حضرت
आयशा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुतालिक कहा कि ये तो इस तरह के छोटे कद की हैं। और जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये बात पता लगी तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि आयशा तुमने ऐसी बात कही है कि अगर समंदर में डाली जाए तो इसकी कड़वाहट और बदबू की वजह से समंदर की मखलूकात समंदर से छलांग लगाकर बाहर आ गई। एक मौके पर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने गुलाम को लानत दी। जब लानत दी तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता लगा तो नबी अलैहिस्सलाम ने सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि अबू बकर, कोई सिद्दीक भी कभी किसी को लानत देता है? सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसके बाद ला व रब्बिल काबा, ला व रब्बिल काबा, ला व रब्बिल काबा बार बार यही कलमा दोहराया, रब्बे काबा की कसम ऐसा नहीं हो सकता। और इसी मलाल और गम के अंदर अपने गुलाम को आजाद कर दिया कि कैसा गुनाह मुझसे सरजद हो गया है। इसी तरह एक मौके पर एक सहाबिया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने उन्होंने हवा को बुरा भला कहा। उनका दुपट्टा उनके सर से नीचे उतर गया, हवा की वजह से उन्होंने लानत दी हवा को। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा इस हवा का क्या कसूर है, ये तो अल्लाह के हुक्म से चलती है, अल्लाह की फरमाबरदार है, इसको क्यों गाली देते हैं? आज हम बात बात पर बुरे अल्फाज कहते हैं, बात बात पर अपनी जबान से गंदे अल्फाज निकालते हैं, जबकि ईमान के बाद सबसे बड़ा गलत और काम यही है कि अपने आप के साथ बंदा फिस्क का नाम लगा दे कि कोई इसको फासिक कहे। जब हम गलत गोई करेंगे, फाश गोई करेंगे, बद कलामी करेंगे, गालम गलोच करेंगे तो हमारा नाम फासिक हो जाएगा। जब हम फासिक हो जाएंगे तो पहले तो हम मोमिन थे लेकिन अब फासिक कहलाएंगे। फासिक कहलाना बहुत ही बड़ा बुलंद गंदा तरीन मकाम। आज हम इस चीज की तरफ ध्यान नहीं करते। आज हम अपने कामों से काम रखते हैं लेकिन इस बात की तरफ नहीं आते कि किसी की हम तौहीन कर रहे हैं, तजलील कर रहे हैं, किसी को बुरे अलकाब से पुकार रहे हैं, किसी को लान तान कर रहे हैं। हर एक अपने आप में अपने आप को बड़ा समझने की कोशिश कर रहा है। अब जिन लोगों ने कुरान करीम की तौहीन के ऊपर आवाज उठाई तो वो तो अल्लाह के यहाँ बाई से अजर हैं, लेकिन जिन्होंने आवाज नहीं उठाई तो मैं और आप अब उनके ऊपर वावेला करें, उनको बुरा भला कहें तो ये किस दर्जे में आएगा मुझे बताएं। उन्होंने तो ये गलत काम किया कि तौहीन के ऊपर आवाज नहीं उठाई, लेकिन अब मैं सोशल मीडिया के ऊपर उनके खिलाफ तूफान बदतमीजी बर्पा कर दूं कि तुम तो फुला जगह नहीं उठे, तुमने आवाज नहीं उठाई, और इस तरीके के गलीज तरीन अल्फाज इस्तेमाल किए जाए तो मुझे बताएं मैंने नेकी अल्लाह के लिए की है या मैंने लोगों के लिए की है? अगर लोगों ने नहीं किया तो वो जाने, उनका रब जाने, लेकिन हम तो उनको अपनी जबान से बुरा भला ना कहें ना। वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, जिसने ये सारे के सारे काम किए और फिर तौबा नहीं की तो वो अपने आप को जालिमों में शुमार करे। और अज़्ज़ुल्मु ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा, ये जो जुल्म करने वाले लोग होते हैं कल क़यामत के दिन अंधेरों में होंगे, अंधेरों। फिर अब अगर लोग किसी का मजाक उड़ाते हैं तो फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस वईद को ज़हन में रखें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो लोग दुनिया के अंदर लोगों का मजाक उड़ाते हैं, तमस्खुरबाजी करते हैं, कल कयामत का दिन होगा अल्लाह रब्बुल इज्जत भी ऐसे लोगों के साथ तमस्खुरबाजी करेंगे, ऐसे लोगों का मजाक बनाएंगे। मजाक किस तरह बनाएंगे कि जब जन्नत का मैदान सजा हुआ होगा और जन्नत और दोज़ख के कश्मकश में लोग होंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे लोगों को बुलाएंगे जो लोगों का मजाक उड़ाया करते थे और जन्नत के दरवाजे को खोल देंगे और कहेंगे कि जाओ जन्नत में जाओ। जब वो जन्नत के दरवाजे की तरफ पहुंचने लगेंगे तो फिर जन्नत का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा और कहा जाएगा फला दरवाजा खुला है, वहां से चले जाओ। और जब वहां से जाने लगेंगे वो दरवाजा भी बंद होगा। इसी तरीके से वो थक कर गिर जाएंगे जमीन के ऊपर, लेकिन जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सके। इसी तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मन अय्यरा अखाहु बिज़म्बिन क़द ताब मिन्हु लम यमुत हत्ता यामला, कि अगर कोई हमारा इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाता है, मुसलमान बन जाता है और उसके पुराने गुनाह हैं, पुराने जो भी किसी भी किस्म के गुनाह हैं, उसके ऊपर अगर उसको बुरा भला कहा जाए कि तुम फुला तर्ज अमल तुम अपनाते थे, तुम तो इस तरीके से किया करते थे, तुम्हारा ये तर्ज अमल हुआ करता था, तुम तो बड़े बेकार किस्म के आदमी थे, तुम तो फुला के आगे झुकने वाले थे, तो ऐसी बात करना भी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये शख्स जो ऐसी बातें कर रहा है ये नहीं मरेगा जब तक कि खुद इस ऐब के अंदर मुब्तला ना हो जाए। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों,
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये दौलत ईमान की हमें दी है, तो इस ईमान की हिफाजत करें, इस ईमान को बचाएं, इसके ऊपर गुरूर और तकब्बुर और घमंड न करें कि मैं तो ईमान वाला हूँ, सामने वाला तो बेकार किस्म का आदमी है। नहीं नहीं, बल्कि अगर वो सामने वाला ईमान ले आता है और कुफ्र को छोड़ देता है और उस जिंदगी से तौबा ताइब हो जाता है, तो याद रखें कि उसके वो सारे जिंदगी के गुनाहों पर अल्लाह रब्बुल इज्जत इस कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की वजह से और इसकी बरकत से सारे गुनाह खत्म फरमा देते हैं और उसके सारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा देते हैं। अब मुझे बताएं कि उसके जितने गुनाह थे वो सारे नेकियों में तब्दील हो गए। अब उसकी 50 साल जिंदगी थी, 70 साल जिंदगी थी, जितने उसने गुनाह किए थे वो सारे ईमान में आ गए हैं, वो सारे के सारे नेकियां बन गए हैं। मुझे बताएं कितना बड़ा उसने मकाम अल्लाह के यहाँ पा लिया। अब अगर ऐसे लोगों को हम बुरा भला कहें और बुरी बात कहें, तो मुझे बताएं कि फिर उन लोगों के लिए हम अपने आप को किस दर्जे में लेके जा रहे हैं। इसी तरीके से अगर हमारे इस्लाम पे मुसलमान कायम है, फिर कोई गुनाह हो जाता है, फिर बाद में वो तौबा ताइब हो जाते हैं, बाद में अगर वो तौबा ताइब हो जाते हैं, अपने गुनाहों को छोड़ देते हैं, शराबी थे, जानी थे, बदकार थे, अपने गुनाहों से तौबा ताइब हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों को भी उनके गुनाहों की वजह से ताना ना दिया जाए, बल्कि उनको अप्रिशिएट किया जाए, उनके साथ उनको थपकी दी जाए, तसल्ली दी जाए कि आपने बहुत अजीम काम किया। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत कदरदान है। जितनी अल्लाह के लिए कुर्बानी दी जाती है, इस्लाम के लिए कुर्बानी दी जाती है, एक तो होता है कि बंदे को गुनाह वैसे ही कभी लगना, एक होता है गुनाह को चाहते हुए गुनाह को छोड़ देना, उसकी बड़ी फजीलत। ये गुनाह करने को दिल चाह रहा था, फिर भी उस गुनाह को छोड़ दिया। मैं और आप रिश्वत से वैसे ही रुके हुए हैं, लेकिन एक मकाम पर, एक स्टेज पर, एक मनसब पर हम बैठ जाएं और फिर रिश्वतें मिलने लगे, फिर हम उस रिश्वत से बाज आए, फिर उस रिश्वत देने वाले को मना करें कि भाई मैं रिश्वत नहीं लेता, ये है मकाम फजीलत। तो गुनाहों से बचना ये फजीलत का मकाम है, ना कि ये कि जो लोग तौबा ताइब हो जाए उनको उसके ऊपर लान तान करना। ये लान तान करना ये इस्लाम में मुसलमानों का तरीका हरगिज नहीं। ना ही मुसलमान दूसरों को उसके मजहब के मुतालिक कोई गलत बात कहते हैं। मुसलमान तो वो है जो हर वक्त अमन की बात करते हैं, हर वक्त नेक बात करते हैं, कि उनके क्या है सूरह असर के अंदर वो लोग जो ईमान लेकर आ गए और अपने अमल को भी नेक बना लिया, और इसी के साथ साथ हक की तलकीन करते रहे कि भाई हक बात ये है, इसके ऊपर आ जाओ। अगर कोई तकलीफ मिल रही है तो फिर क्या वतवासौ बिस्सब्र, कि सब्र के ऊपर जमे रहो, अपनी जबान से बुरे अल्फाज ना कहो, अपने आप को गंदा ना करो। अपने आप को गंदा कर लेना ईमान के बाद सबसे गंदा तरीन मकाम है कि पहले आप इस्लाम में आए, अल्लाह ने आपको ईमान का दर्जा दिया, आप दुनिया के अंदर मोमिन कहलाने लगे, आप मुसलमान कहलाने लगे, लेकिन जब आप दूसरे को बुरा भला कहना शुरू करते हो, बेवजह अपनी जबान को गंदा करते हो, तो आप फासिक और फिस्क में शुमार होने लग जाते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं बि'सल इस्मुल फुसूक, ये बहुत ही गंदा नाम है। इससे बगैर तौबा के अगर इस दुनिया से चले गए तो जालिमों में शुमार होगा, और जालिमों का कल कयामत के दिन बड़ा ही रुसवाई वाला दिन होगा। कल कयामत के दिन उनके लिए कोई छांव नहीं होगी, कोई उनके लिए साया नहीं होगा, कोई उनके लिए बचाव की जगह नहीं होगी, कोई रहमत की उनके लिए हवा नहीं होगी, बल्कि सरासर उस मैदान के अंदर रुसवाई दर रुसवाई होगी। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इन मोहलिक बीमारियों से बचने की तौफीक अता फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकता या दल जलाली वल इकराम। अल्लाह करीम हमारा यहाँ बैठना अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमा। अल्लाह करीम कुरान और अहादीस का सुनना सुनाना अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमा। या अल्लाह ये जो मोहलिक बीमारियाँ, रूहानी बीमारियों का तस्करा किया गया, या अल्लाह इस सब से हमको महफूज फरमा दे। या अल्लाह इससे हमको बचने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे शर से और लोगों के शर से हम सबको महफूज फरमा दे। या अल्लाह इसी तरीके से या अल्लाह जो लोग शर की नीयत से मुआशरे के अंदर घूम रहे हैं, या अल्लाह ऐसे लोगों के शर से भी पूरी दुनिया को महफूज फरमा दे। या अल्लाह जो दुनिया का अमन खराब करने के दर पे हैं, या अल्लाह ऐसे लोगों से दुनिया को महफूज फरमा दे। या अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत अता फरमा दे। या अल्लाह क़िबला अव्वल बैतुल मक़दस की हिफाजत फरमा। अल्लाह करीम हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा। अल्लाह करीम मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क को अमन का गहवारा बना। या अल्लाह डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को जल्द रिहाई अता फरमा। या अल्लाह जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हाल हैं, बीमार हैं, मुसीबत ज़दा हैं, तकलीफ़ों में हैं, या अल्लाह तमाम की बीमारियों को, परेशानियों को, मुसीबतों को, तकलीफ़ों को दूर फरमा।
یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما، یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔